Let me just start my recording. Okay, good morning everyone. Only 11 students have joined, so we will wait for some time. Okay. Okay, there was a location problem and network issue, so I have returned back. Wait a moment, let's start our lecture. મેમ અવાજ કપાય છે તમારો. Wait a moment.
ओके, लास्ट टाइम लेक्चर में हमने क्या देखा था, किसी को पता है? अगर आपके पास बुक है, आपकी लेक्चर बुक, एंड अगर आपने सब कुछ लिखा है तो आपको पता होगा कि वेट अ मोमेंट, मेरा स्पीकर म्यूटेड है, लेट मी जस्ट ऑन। ओके, कैन यू टेल मी कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर में क्या देखा था? Determinant of matrix of order 3. यस, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट? બે સમ કરવા આપ્યા હતા મેડમ તમે જાતે ઘરે પાંચમો ને છઠ્ઠો हाँ, એ સોલ્વ કરાવી દો હવે થોડો ઘણો. યસ, લેટ્સ સી। સોલ્વ કરવા અહીંયા જ સોલ્વ થઈ ગયા હતા, જાતે નથી આપેલા મેં। હા મેડમ, નો, ક્વેશ્ચન જ લખાવ્યા હતા મેડમ ખાલી. ઈ લેબ માં હશે તારે। હા, મે બી લેબમાં હોઈ શકે, બટ હા લેક્ચર તો મેડમ બે ભેગું થઈ ગયું કઈ વાંધો નથી ને? કેમ થોડું વાંધો ઘણું નહીં હોય? મીન્સ કે ઓબ્વિયસલી હોય તમારે પછી આજ મેડમ આજ આ બે સમ છે ને ઈ જ આ બે. yes, these two sums were done, these sums were done, કે આ કરી નાખેલા હતા આપણે સોલ્વ। હા કરી નાખ્યા. yes, if you find the determinants for these two matrices, you will get the answer as 0, right? तो आई थिंक डिटर्मिनेंट में किसी को डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, आप पूछ सकते हो। एनीवन प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट इन द डिटर्मिनेंट काइंडली टेल मी। મેમ આ સમ તો એ છે ને કે રો ને કોલમ 0 હોય એટલે આન્સર 0. यस, बट आ सॉल्व करवानुं छे तमारे, सॉल्व करीने चेक करवानुं छे कि तो 0 थाय छे आनो आंसर, राइट? लेट्स solve this matrix determinant here, because ઘણા બધાને query છે જ, right? Determinant of this matrix equals to -121, then 253 and 549. We consider this three numbers, right? First one will be positive, means ke -121 will be plus into minus, that is minus, then second one will be minus, and third positive. Now along with 121 we will write the this matrix, determinant of this matrix, okay? So I have facing problem here. -754 39 37 0 and 0, -253 और उसके साथ में 8130 37 and 0 plus 549 into determinant of this 4 elements, okay? So if you solve this determinant, you will get 0 minus 0, -253 into 0 minus 0, right? Plus 549 into 0 minus 0. That means you are getting the answer 0. 0। Really? Yes. Similarly, if you solve this determinant, then also you will get the answer as 0. Let's count here. Determinant of this A matrix, -5, -9 and 0. So first will be positive, so -5 will remain as it is. Then second one will be negative, minus into -9, and third one will be positive. Now along with -5 we will write the determinant of 10, 0, 11, 0. -9 into 3 0 -6 0 and plus 0 into, इसके साथ में कुछ भी लिखो वो 0 ही आएगा आंसर। तो ये डिटरमिनेंट ना लिखो तो भी चल जाए,
Okay, so minus 5 into 10 into 0, that is 0 minus 0. Minus minus plus 9 into this will be 0 minus 0 and plus 0 तो है ही, तो ये क्या मिला आंसर इसका भी 0. So if you are given the matrix in which one of the rows is 0 or one of the columns is 0, then the determinant of that matrix will be 0 only, right? You can see here the answers are 0. Got it now? Yes, ma'am. Okay. So let's move ahead. Write down everyone properties of determinant of a matrix. Properties of determinant of a matrix. अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देखते हैं. लास्ट टाइम हमने जैसे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी देखी थी, लाइक दैट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना वो एक ऑपरेशन ही है, उसको हम एक मैपिंग बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन या तो मैपिंग बोल सकते हैं, लाइक कि मैट्रिक्स क्वांटिटी को वो नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, राइट? So determinant is an operation or a mapping or a transformation. You can say like this. So what is written here? If we take a transpose of a given matrix, then the value of determinant remains same. Remains actually, we can write this. Remains same. If we take the transpose of a given matrix, then the value of determinant remains same. Write down everyone this statement. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स. सपोज वी हैव A इक्वल्स टू 1 5 3 8. Okay, 1 5 3 8 suppose we have. So the determinant of A will be, count down this determinant. So what you need to do? 1 into 8, 1 into minus 5 into 3. 8 minus 15, so you will get minus 7, right? And if we take A transpose, so A transpose meaning, can anyone tell? What is A transpose? How to find A transpose? 1538. 1538. 1538. Hello, ma'am. Yes. Hello. કોલમ છે એ રોમાં વહી જશે. Yes, very good. So we will find the transpose. कैसे? तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी. तो फर्स्ट रो will be first column 1 5 and second row will be second column. Now we will find the determinant of A transpose. Find out this A transpose, determinant of A transpose. So 1 into 8, right?
1 into 8 minus 3 into 5. So the answer is 8 minus 15, meaning minus 7. So see, both determinants are same. मीन्स कि अगर ए का हम कोई भी रैंडम ए दिया गया है उसका आप ट्रांसपोज उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, वो क्वांटिटी और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, उसकी वो वाली वैल्यू दोनों सेम रहेगी. तो सपोज यू आर गिवन दैट क्वेश्चन लाइक if determinant of A equals to minus 59, then what is the determinant of A transpose? Okay, suppose you are given the options like minus 59B, 59C, 1 upon 59 and D minus 1 upon 59. So the answer will be A. Got it? So this can be asked in multiple choice question. Or else if you are given like question- મેમ રાખો અમે લખતા હતા એક જ મિનિટ. Okay, okay, okay. મેમ ફૂલ સ્ક્રીન કરી દો ને હવે. હા, ફૂલ સ્ક્રીન નથી વિઝિબલ. ફૂલ સ્ક્રીન જ છે નથી. નથી સર. ના છે મેમ, છે full screen વિઝિબલ. નથી. નથી, Full ફૂલ screen સ્ક્રીન નથી એમ. કોણ છે ફૂલ સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ઈ? મેમ નથી ફૂલ સ્ક્રીન વિઝિબલ કોઈને. કોઈને તપી ગયો. એક કામ કરો, સ્ક્રીન રોટેટ કરી નાખો. સ્ક્રીન રોટેટ કરીને પછી જુઓ. એટલે મેડમ બાજુમાં સ્લાઇડ દેખાય, સ્લાઇડ શો ચાલુ કરો એમ કે. ઓકે, એના ઉપર હું લખીશ તો પછી મારાથી કંટ્રોલ ઝેડ નહીં થાય. અને આટલું ક્લિયરલી દેખાય છે એકદમ જ. મેમ દેખાય તો છે જ ક્લિયરલી. હા, અને સ્ક્રીન રોટેટ કરો સો દેટ તમને વધારે સારી રીતે દેખાશે. આનંદ જે રીતે બતાવે છે એ બરાબર જ છે. સપોઝ હું ફૂલ સ્ક્રીન કરી નાખીશ, સ્લાઇડ શો કરી નાખીશ તો પછી મારાથી જે સપોઝ કઈ ભૂલથી લખાઈ ગયું હોય તો એ મારાથી રબ નહીં થઈ શકે. મેમ ઓકે મેમ. હા, યસ. આ નીચે તમે આ ક્વેશ્ચન કરેલું છે if -59 વાળું, હા, આ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એ રીતે. એક્ઝામ્પલ છે. હા, કે આ રીતે તમને પૂછાઈ શકે એક્ઝામ્પલ કોઈ ક્વેશ્ચન. Done everyone this question? So let me just rub it so that I can write the another example question. યસ Okay. યસ યસ. So another question can be asked like if no, let determinant A equals to no. Let A equals to कोई भी रैंडम आपको डिटर्मिनेंट दिया है, मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, कोई भी 3/3 या 4/4 या एनीथिंग एल्स, एंड इफ डिटर्मिनेंट A equals to no. Wait. Let 5, 9, 8, -3, 10, 15 या कोई भी रैंडम क्वांटिटी 11, 13, -17 equals to say -100, then find 5, 9, 8, -3, 10, 15 या तो then this quantity 11, 13, -17 equals to blank. ऑप्शंस A B C D, क्या आंसर होगा इसका?
-100 જ હશે. यस, -100 विल बी द आंसर, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है उसका ट्रांसपोज वाला ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने को बोला है, राइट? तो द आंसर विल बी -100 ओनली. ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है 4/4 का आपको डिटर्मिनेंट दिया है या 5/5 का. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा आपको काउंट करने को नहीं बैठना है. सिंपली आप क्या करोगे, जो दिया है उसका उसकी सेम क्वांटिटी होगी, या तो फिर कोई छोटा सा आपको दिया है डिटर्मिनेंट जैसे आगे हमने, ठीक है, देखा, तो डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर. तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है. So let me just rub this because no need to write this one. So next slide. Second property is, if we multiply every entry to a row by k does not equal to 0. कोई स्केलर से हमने सभी रो या सभी कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया, then the value of the determinant so obtained is k times the value of the original determinant. क्या बोलना चाह रहा है हमें, हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है. Suppose we are given a equals to 1 2 3 4. Then we write twice a नहीं, चलो हम 5 times a लिखते हैं. ओके, तो ये क्या होगा, 5a मीन्स कि ये सभी एंट्रीज को हम 5 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा, राइट? तो 5 into 1 that is 5, 5 into 2 that is 10, 5 into 3 that is 15 and 5 into 4 that is 40. Okay, now we are finding determinant of a 1 2 3 4. Okay, चलो ये नहीं लिखते, चल जाएगा. 1 2 3 4. ओके, क्या होगा, 1 into 4 minus 2 into 3. मैडम 20 की 40, 5 10 15 and Oh, 20. sorry, 20. Okay, so this determinant will be 4 minus 6, 4 minus 6 that is minus 2. Now let's find 5a, determinant of 5a. Okay, so 5 into 20 minus 10 into 15. Okay, so क्या मिलेगा आंसर, 100 minus 150. क्या मिला, -50. अब ये दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि क्या रिलेशन होगा इनका. वेट 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 वेट, ये इररिलेवेंट मैंने लिखा है, ये निकाल दो, ये हमें डिटरमिनेंट ही देखना होगा, इररिलेवेंट है ये. एवरीवन, suppose we have this determinant, 5 8 2 3, राइट? सपोज 3 नहीं लिखते, चलो यहाँ पे 4 लिखते हैं सो दैट आपको ज्यादा आइडिया आएगा. ओके, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 5 into 4 minus 8 into 2. So 20 minus 16 that is 4. Now let's find out this determinant 5 8
3 इंटू 2, 3 इंटू 4 मीन्स कि ये क्या होगा 5, 8, 6 एंड 12, राइट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करो। फाइव इंटू 12, 12 होगा मैम। यस 12 होगा इसका। 12 होगा इसका आंसर, राइट। तो इसका आंसर होगा 12। अब इन दोनों को रिलेट कर सकते हो आप। थ्री टाइम्स વધારે है। यस 3 टाइम्स વધારે છે, 3 टाइम्स 3 ज्यादा है एक्स्ट्रा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा? क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, रिलेट कर सकते हो इन दोनों को कि अगर हम 3 से रो को या तो कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इनका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो वो जो आंसर मिलेगा वो 3 टाइम्स होगा। समझ में आ रहा है? મેમ આપણે 3 ટાઈમ નો કરી આન્સર આવે हाँ આપણે 3 ટાઈમ નો કરી આન્સર આનો આવે કે આવે આન્સર हाँ 3 टाइम्स नहीं કર્યું मीन्स કે आज ओरिजिनल હતો એ જ। बट इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इससे क्वेश्चन ऐसा कुछ तो पूछा जा सकता है, राइट, कि क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज यू आर गिवन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 100, 50, 150, 300, 50, 90, 80, 159, 437 and 628 equals to suppose minus 500. Okay, then determinant of 100, 150, 300 minus 100 minus 180 minus 160 159 437 628 equals to what? जो हमने ये रिमार्क देखी, जो प्रॉपर्टी देखी, उसके ऊपर से आप बता सकते हो कि इसका डिटरमिनेंट 1000 में 1000। यस वेरी गुड। क्या होगा 1000? कैसे कैसे? तो हमने सी इसको रिलेट कर सकते हो। ये जो है डिटरमिनेंट वो होगा 100, 150 एंड 300 माइनस 2 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 90 माइनस 2 इंटू 80, राइट। बाकी का सब सी। अब दोनों को फर्स्ट गिवन जो है वो और ये हमने लिखा वो रिलेट करो। ये दोनों को क्या दिख रहा है यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड है, सब एज इट इज जो गिवन आपको डिटरमिनेंट है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा -2 इंटू 500, सॉरी -2 इंटू 500 दैट इज 1000। गॉट इट? अगेन सपोज आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है, दिस इक्वल्स टू सपोज -500 300 450 एंड 900। तो द आंसर विल बी सी। ये फर्स्ट दोनों को रिलेट करो, क्या है थ्री मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100, देन 450 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 150, देन 900 को लिख सकते हैं अगेन हम 3 इंटू 300। तो द आंसर विल बी ये 333 एक्स्ट्रा है, ओके आगे से। तो 3 इंटू फिर ये -2 भी एक्स्ट्रा है, -2 इंटू दिस वन, तो -500। So now the answer will be, this one will be 6 into 5, 30 and 00. हेलो मैम, हाँ जैसे यहाँ पर 3 से और 2 मल्टीप्लाई की अभी, हाँ यहाँ में
अलग अलग रो में कर सकते हैं क्या? यहाँ पर 3 3 किए थे, यहाँ पर 2 में एक में लिख सकते हैं। क्या? जैसे एक लाइन में 3 क्या, एक रो में 3 3 किए हैं ना मैम, हाँ, उसमें से 2 3 रहेगा, एक 2 हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। पूरी की पूरी रो या तो पूरी की पूरी कॉलम में कॉमन ही होना चाहिए। एक में ओके 3 है, एक में 2 है, तो फिर हम ऐसा आंसर नहीं लिख सकते, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है ये प्रॉपर्टी। ओके मैडम आखी रो में एक कॉमन नहीं करવો જોઈએ ને? पूरी की पूरी रो में सेम ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। या तो पूरी की पूरी कॉलम में भी ऐसा है तो भी कोई बात नहीं, बट जो कॉमनली ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। Then, so now next, properties of determinant of a matrix. Okay, sorry, वो चल रहा है टॉपिक ही। If the corresponding elements of any two rows or columns are identical, then its determinant always be 0. यहाँ पे its is इसका मीनिंग है its determinant always be 0. मीन्स कि अगर हम ये कोई एक मैट्रिक्स हम ले, ठीक है। सपोज हम लेते हैं 1 5 6 3 -2 8 3 -2 8 सेम ही। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। 1 इंटू ये क्या होगा, -16 माइनस 16, राइट। देन -5 इंटू दिस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 24 -24, एंड +6 इंटू -6 राइट। तो ये क्या हुआ, 1 इंटू 0 -5 इंटू 0 +6 इंटू 0 मीन्स की आंसर क्या मिला, 0। क्यों ऐसा? बिकॉज दिस बोथ रोज आर सेम। तो अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट ऐसा दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है जिसमें 2 रो या 2 कॉलम्स सेम है और बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हो 0, बिकॉज दिस मेंशन करना है, बिकॉज दिस 2 रोज और जो भी गिवन 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल और सेम। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है सेम, इसको हम इसके जगह पे हम सेम भी लिख सकते हैं, या तो इक्वल, राइट। मैथमेटिकली ये वर्ड सही रहेगा, इक्वल। मैम एग्जांपल रिपीट कर दियो ने। हाँ, suppose you are asked that find determinant of 3985 4013 1598 and 3985, और ये सपोज आपको 1 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है या तो एमसीक्यू में पूछा गया है। क्या करोगे इसमें, तो सभी रो या कॉलम्स चेक करो। ओके चलो हम एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, कॉलम वाला रखते हैं 9879058। ओके, तो 1 मार्क में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या आप पूरा सब काउंट करने बैठोगे, नो, ठीक है। इसमें डेफिनेटली कोई प्रॉपर्टी का यूज होगा और शॉर्टली इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो क्या करोगे इसमें, सभी रोज या तो सभी कॉलम्स को कंपेयर करो, ये रो के साथ कंपेयर करो, सिमिलरली सेकंड रो को बाकी के सबके साथ कंपेयर करो, थर्ड को या फोर्थ को,
कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिमिलरली कॉलम को चेक करो, ये फर्स्ट कॉलम को बाकी सभी के साथ कंपेयर करो, कुछ नहीं है। सेकंड को बाकी सभी के साथ कंपेयर करो, सी सेकंड एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल और इक्वल, दिख रहा है ये, राइट। दोनों रो या कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम अगर डिटर्मिनेंट में सेम है तो उसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा, 0 ही। तो ये 1 मार्क का ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गॉट इट नाउ? यस मैडम। ओके, केवल गॉट इट? यस मैम, कंप्लीट। ओके, सो शॉर्ट में ऐसा आपको पूछा जा सकता है। राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये तीनों ये दोनों रोज इक्वल है, इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे हमने काउंट किया है, बट आपको काउंट नहीं करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो काउंट नहीं करना है, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव्स में पूछा है तो आपको रीजन लिखना होगा, बिकॉज दिस 2 रोज मीन्स की सेकेंड एंड थर्ड रोज आर आइडेंटिकल और इक्वल, दैट्स व्हाई द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0. You can directly write like this, okay? Now next, okay, this one is same. There is okay, there is some mistake. So now the next topic, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का टॉपिक जो इंडिविजुअल टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म हो गया कि हमने 2/2, 3/3 सबके डिटर्मिनेंट्स चेक किए, क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हमने चेक कर लिया। नाउ अगेन वी गेट बैक टू द मैट्रिक्स। सो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट लगेगा। ओके, सो व्हाट इज अ माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। पहले हमें समझा देती हूँ, ओके। व्हाट इज अ माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स? सपोज यू आर गिवन A equals to A, B, C, D, E, F, G, H, I. Suppose you are given any random matrix and you are asked that find the minors of B, first of all C, then H and G. Suppose इनके माइनर्स फाइंड करने हैं। सी माइनर कोई क्वांटिटीज के होंगे, कोई क्वांटिटीज के होंगे माइनर्स, ठीक है। अब C, H और G के माइनर्स आपको अगर फाइंड करने को बोला है तो क्या करोगे इसमें? तो C का माइनर बोला है तो हम डिटरमिनेंट में जो कर रहे थे ना कि C का माइनर कैसे फाइंड करोगे, तो वो रो और कॉलम डिस्कार्ड कर दो और उसका डिटरमिनेंट जो बाकी बची वो सबका डिटरमिनेंट ये C का माइनर होगा। माइनर ऑफ C इक्वल्स टू लाइक दिस। और ये कैसे फाइंड करते हैं? तो DH माइनस EG, राइट। और इसको हम M से डिनोट करेंगे, M, कैपिटल M। सिमिलरली माइनर ऑफ क्या बोला है? H पूछा है। माइनर ऑफ H इक्वल्स टू कैसे फाइंड करोगे ये H का माइनर? तो H कहाँ पे है? वो रो कॉलम डिस्कार्ड कर दो, जो क्वांटिटीज बची उनका डिटरमिनेंट। ओके, सो द माइनर ऑफ H विल बी A, D, C, F। तो इस केस में क्या होगा? AF माइनस CD। समझ में आ रहा है ये? सिमिलरली हमें G का भी माइनर पूछा है, G का माइनर। तो माइनर ऑफ G
इक्वल्स टू जी जहां पे है वो वाली रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, जी कहाँ पे वाला, तो वो रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, तो इनका डिटर्मिनेंट मीन्स ई बी देन सी ई एंड एफ, तो बी इंटू एफ माइनस सी इंटू ई इज द आंसर। गॉट इट एवरीवन कि माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? यस मैम, डन। ओके, और यहाँ पे एक टर्म लिखी है सी कि माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि माइनर ऑफ एलिमेंट्स होता है, कि माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, बट यहाँ पे पूछा है कि माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स कि जो ये मैट्रिक्स है उसके सभी जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के माइनर्स, उसको ओवरऑल हम बोलेंगे माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नोटेशन हम थोड़ा चेंज करते हैं, a इक्वल्स टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ओके, तो a11 का माइनर जो होगा, माइनर ऑफ a11, तो उसको हम नोटेशन में पहले तो क्या होगा, ये a11 का माइनर, a11 का माइनर क्या होगा, तो ये a22, a23, a32 एंड a33 का डिटर्मिनेंट, राइट। अब जो कि ये पोजीशन है a11 पोजीशन, तो उसको हम नोटेशन में ये जो हमें आंसर m11 बोलेंगे, आया समझ में? सिमिलरली इफ वी आर फाइंडिंग द माइनर ऑफ a22, चलो हम a23 रखते हैं, a23 माइनर ऑफ a23, तो कौन सी पोजीशन है, 2-3 पोजीशन, तो हम उसको a23 के नाम से बुलाएंगे, एंड दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a11, a12, a31 एंड a32। Got it? And similarly, minor of the rest of the elements. Similarly, we can find. अब और एक बात, ये थे हमारे ये कुछ आंसर मिलेगा नंबर, ये नंबर में कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। Suppose you are getting the answers like m1 equals to 5, m12 equals to 3, m13 equals to 9 suppose, ठीक है, m21 equals to -5, m22 equals to -9, m23 equals to minus suppose 0, चलो, m31 equals to say 4, m32 equals to 6, and m33 equals to say -1, okay। तो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स मैं नहीं बोल रही हूं, माइनर मैट्रिक्स, ओके, कि माइनर मैट्रिक्स क्या होगा, उसको हम ओवरऑल m से बुलाएंगे, और वो क्या होगा, तो m11 राइट डाउन, देन m12, देन m13, m22, m23 जो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हैं वो लिख रही हूँ, ठीक है, m31 that is 4, m32 and m33, this is minor matrix, और उसको ओवरऑल हम m से बुलाएंगे। Got it everyone? यस मैडम। Okay. यस मैम। अगर किसी को क्वेरी है तो मुझे बताओ। तो ये आप समझ पा रहे हो, ये माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट कहाँ पे लग रहा है,
आप सोच सकते हो ये माइनर का कंसेप्ट कहाँ पे लगा हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड करते हैं? यस मैम। यस, A11 इंटू करके हम वो रो कर देते हैं, फिर A12 लेते हैं, वो नेगेटिव लेते हैं, वो रो कॉलम हम डिस्कार्ड कर देते हैं, देन A13। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी A11 इंटू माइनर ऑफ A11। जो हम स्क्वायर का वो लेते थे ना डिटर्मिनेंट, वो क्या था? माइनर ऑफ A11। एक्चुअली माइनर नहीं होगा, इसके आगे भी और एक कंसेप्ट आ रहा है, माइनर नहीं होगा। सिमिलरली A12 के साथ उसका माइनर, उसी का ही माइनर, सिमिलरली प्लस करके A13 इंटू A13 का माइनर, ये कंसेप्ट है। પછી બધા માઇનર ને એમ સાથે वेट हम सी, मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते थे? A11 इंटू A22, A23, A32, A33 माइनस करके A12 इंटू क्या होता था? A21, A23, A31, A33 प्लस A13 इंटू A21, A22, A32। ये ऐसा होता था डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है? ये ऐसा क्यों लिया? वो क्या है? तो A11 को डिस्कार्ड कर देते थे हम, तो जो ये बना वो क्या है? माइनर ऑफ A11, मीन्स कि A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12। अब समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? These are minors of these quantities। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखते हैं। चलो, write down example everyone। find ओके, हम लिखते हैं लेट A equals to 531 205 minus 1 4 6। then find minors of all elements of A। ओके, सपोज क्वेश्चन दिया है आपको, देन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें सभी एलिमेंट्स, ए के सभी एलिमेंट्स है, उनके माइनर्स फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वन बाय वन सभी के माइनर्स हम फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं हम माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, मीन्स की फर्स्ट एलिमेंट मीन्स की 5 का माइनर। वो क्या होगा? वो रो कॉलम कर दो, तो जो स्क्वायर बचा उनका डिटर्मिनेंट, जो एलिमेंट्स है 4 उनका डिटर्मिनेंट। तो 0 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4, तो 0 minus 20, that is minus 20। Similarly, find minor of second element means के 3, minor of 3। 3 जहां पे है वो रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, तो 2
देन नीचे -1 5 एंड उसके नीचे 6। क्या होगा 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू -1। तो 12 minus -5 that is 12 plus 5 तो आंसर is 7। Similarly find out the minors of the rest of the elements, all elements। तो 1 का 2 का 0 का 5 का सबके एलिमेंट्स के सब एलिमेंट्स के माइनर्स ऐसे आपको फाइंड करने हैं। फाइंड आउट एवरीवन। Similarly, minor of 1, 8 આવે મેમ? let me check. Yes, 8. So 2 into 4 minus 0 into -1. So the answer will be 8. Let me copy this matrix so that I can write it elsewhere. Similarly, we find minor of 2, find out, then minor of, मैं सिर्फ directly आंसर ही लिखूंगी, right? Minor of 0, then minor of 5, minor of -1, minor of, મેમ 2 માં 20? let me check, minor of 6. 2 માં થશે 18 minus 4, 18 minus 4 क्या होगा 14। This 3 into 6 minus 4 into 1, 2 માં એવું આવશે। એ રો કોલમ ડિસ્કાર્ડ કરી દઈએ। જીઓ માં 31. ઓકે 0 માં થશે 30 minus -1, yes, 30 minus -1 that is 31, good, 5 માં 23. yes, very good। 20 minus -3 that is 23। -1 का क्या होगा 15 minus 0 that is 15 only। Then 4 का 25 minus 2 that is 23। And 6 का क्या होगा तो 0 minus 6 that is minus। तो ये माइनर का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। 4 मिनट्स ही बाकी है, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाते। आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, वो आपको करना है।
ओके मैडम अटेंडेंस दी थी यस, बट ये एग्जाम्पल लिख के जाओ, फाइंड द माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A given matrices. First one, and the second one equals to 1 2 3 4. बहुत सारों ने गलत अटेंडेंस दी है यहाँ पे। लेट मी चेक कि किन किन ने। करण, अगेन आई एम टेलिंग कि आपकी अटेंडेंस गलत है, हर बार मुझे बताना पड़ता है। अगेन अगेन हर बार मुझे टोकना पड़ता है। यस सुजल, ओके डन। लास्ट वाली अच्छे से दी है अटेंडेंस, गुड। करण ठीक से अटेंडेंस यस मैम। जो मैम मैनर लीव થઈ જાય है उसी मैनर में लिखना। यस, इफ यू आर डन देन यू कैन गो, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ये होमवर्क करना है आपको, ठीक है। रैंडम मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ ये इसके आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। ओके डन मैडम। ओके, टेक केयर, थैंक यू। Leave the meeting.